ओके बोले जी, रेडी। त्रिमंत्र बोला जो। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो वरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपनासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणंच सव्वे सेम मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फरजियात कर्म ना फळ भोगवान तेમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા જ્યાં સુધી છે દેહ રૂપ કાર્ય ફરજિયાત તેમાં રાગે દ્વેષે બીજા ભવના હિસાબ કાર્યની કિંમત નથી કશાયો જોવા આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા અવનવા ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કર્મ થવાના આત્મજ્ઞાનની ઇફેક્ટોને ના સ્વીકારતા ગાળ્યા તો ફૂલ ચડે દ્રશ્યોની રખવા આત્મા બેઠો છે અંદર બંધનથી છૂટવા ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા શુદ્ધ ઉપયોગે કર્મો ખપી જવાના નિર્જરા છે જ્ઞાનની પાસે બેસી જવામાં આત્માને અડતા નથી પરમાણુ પ્રાયા મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યું વીતરાગ થાવા ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘાવ નવા આત્મા બેઠો છે અંદર બંધનથી છૂટવા મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યું વીતરાગ થાવા મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યું વીતરાગ થાવા વીતરાગ થાવા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ પુલિયાનજી બહુ બસ આ હા ટૂંકામાં આખું સાયન્સ આપી દીધું છે હા, બસ ટૂંકામાં દુનિયાની વાસ્તવિકતા, જીવનની વાસ્તવિકતા આખી આપી દીધી છે અને અજ્ઞાની માણસ માટે શું હકીકત બને છે આખું એમાં શરૂઆતમાં એ રજૂઆત થાય છે અને પછી આપણા મહાત્મા માટે છેલ્લી બે ચાર લાઈનમાં છે
કે જે અત્યારે ફરજિયાત કર્મ છે, મન વચન પ્રાપ્ત થયા છે એ ફરજિયાત છે. એટલે મન વિચાર આવશે, વાણી બોલાશે ને કાયા કાયા કામ કરશે, શરીરથી કાર્યો થશે. અને એમાં જે રાગ દ્વેષ થાય છે, ગમા અણગમા ઉભો થાય છે, એટલે નવા બીજ ઉત્પન્ન કરે છે. આ વખત વાઈફ બરાબર ના મળી તો બીજી વાર આવી જોઈએ, કે હસબન્ડ આવવો જોઈએ. એટલે રાગ દ્વેષ બધા નવા નવા કોઝ કેવી રીતે નાખે છે. ડિસ્ચાર્જ કર્મમાં ભળીને એના પ્રત્યે નવા કોઝ નાખતો હોય છે. એ એક સામાન્ય કર્મ ની ઇફેક્ટ કેવી રીતના થાય છે અને નવા કર્મ ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય છે, એ આ બે લાઈનમાં સમજાવાય છે. અને પછી કે છે શરીર છે એટલે શરીર સાથે સંકળાયેલું બધું ફરજિયાત જ છે. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે આપણા માટે. અને આપણને થોડુંક ઇફેક્ટમાં વિતરાગતા રાખવા માટે હેલ્પ થાય કે આ જે દાદા ભગવાન કહેતા કે આ મન આ કાયા, આ શરીર મને એકવાર દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ શરીર એનું ખાવા પીવાનું, ઓઢવા પીવાનું બધું લઈને જ આવ્યું છે, એટલે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ત્યારે બહુ નાનો હતો ત્યારે. એટલે હવે એ વસ્તુ કામ લાગે છે કે એની મેં બધું થશે એમ. અને રિયલી ઓબ્ઝર્વ કરીએ, આમ નિરીક્ષણ કરીએ તો એવું જણાય છે કે એના ટાઈમે બધી વસ્તુ મળતી હોય છે. ખાલી ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. ધીરજ બુદ્ધિનો ભાગ નથી રાખવા દેતો, એટલે એ બુદ્ધિ અજ્ઞાનનો ભાગ છે. અને એની સામે આ જ્ઞાન મૂકીએ કે બધું ફરજિયાત છે અને એની મેતે બધું મળશે. આમાં તો હું બોધ એ લઉં છું કે એની મેતે બધું મળશે, કમ્પલસરી છે. અને રાગ દ્વેષ બીજ ભવના હિસાબ શું લખ્યું છે, એમાં રાગે દ્વેષે બીજા ભવના હિસાબમાં. એટલે અત્યારે તો ફરજિયાત છે કે તમારે પરણવું જ પડે, કે આ અમુક નોકરી કે ધંધા કરવા જ પડે. અને પછી એમાં ગમા અણગમા કરે એટલે બીજા બીજ નાખે. સંસારી હોય તો કે હવે સંસારથી છૂટવું છે, ત્યાગી થવું છે, સાધુ થવું છે. અને સાધુ કંટાળો હોય તો કે સંસારી થવું છે, એટલે નવા બીજ નાખતા હોય છે. એક સામાન્ય કાર્યની આ જે સેન્ટેન્સ છે આપણા માટે થોડું કામ લાગે એવું છે કે કાર્યની કિંમત નથી કશાયો જોવા, આપણા સ્પંદનોથી પડઘા અવનવા. એટલે આપણે શું બોલીએ છીએ કે શું વર્તન કરીએ છીએ કોઈ સાથે, એની ભગવાનને કિંમત નથી. તારા અંદર ભાવ કેવા છે એ વખતે એની કિંમત છે. જેમ ઓલો કહે ને, રાતના મહેમાન આવે તો અત્યારે ક્યાંથી મુવા, તું આવો પધારો બોલે છે એની કિંમત નથી, પણ અંદર જે ઉભું થયું એની કિંમત છે. ઇવન આપણે ડિસ્ચાર્જ માટે આપણા માટે એક હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. એક આપણા એક જાગૃતિમાં હેલ્પિંગ વસ્તુ છે કે આપણે કોઈ સાથે શું વ્યવહાર કરીએ છીએ, ડાયો ડમરો એ નથી, પણ અંદર શું ઉભું થાય છે એના માટે માન અપમાન એટલે અણગમો ઉભો થાય છે. એને હું બીજી વાર જોઈ લઈશ, મારા પૈસા બગાડ્યા હું ધ્યાનમાં રાખીશ. એટલે આપણી અંદર જે કશાયો કે જે અવળા ભાવ થાય છે એની કિંમત છે. એ અત્યારે પણ આપણા માટે એની કિંમત છે. એટલે આપણે જો પુરુષાર્થ કરવો હોય તો આપણે એવી રીતે થોડી જાગૃતિ રાખી શકીએ કે અંદર શું ઊભું થાય છે, અંદર શું ઊભું થાય છે. આપણા ડિસ્ચાર્જ કસાયો સામે આપણે જાગૃત રહેવાનું છે. અને એ જેટલા ઓગળે એટલું આપણને મોક્ષ તરફ આગળ જવામાંથી. અને પછી જે બીજી લાઈનમાં છે કે આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા અવનવ. એટલે ડિસ્ચાર્જમાં બી આપણા જે સ્પંદનો થાય છે, સ્પંદનો ટિપિકલી મનના લેવલ. એટલે એ જે છે એ પણ આપણને જ અને સામાન્ય પહોંચે છે. સમજવા જેવું એ છે કે આપણને કોઈના માટે અણગમતા નાગમતા વિચાર આવે છે તો એને પહોંચી જાય છે. જે વાણી બીજાને પહોંચી જાય છે, એને અસર થાય છે, એમ વિચાર પણ એને પહોંચે છે. એની આપણે કાળજી રાખીએ. એટલે ઘણી વાર આપણે બોલતા નથી, પણ કોઈ માટે અણગમો રહે તો એને પહોંચી જતો હોય છે. અને એ પહોંચી જવાથી એને પણ આપણા માટે અણગમો, એને કંઈક દુઃખ થાય આપણા નિમિત્તે, એને સમજાય એવું કદાચ ના પણ હોય, પણ એને ડિસ્કમ્ફર્ટેબલ લાગે. એટલે જયારે એવી વ્યક્તિ આપણી સામે આવે તો એને આપણી સાથે ડિસ્કમ્ફર્ટ થઈ ગયું છે, એટલે એને આપણી સાથે વ્યવહાર પ્રોપર કરશે નહીં. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એનું ઓપોઝિટ પણ એટલું જ ઇક્વલી છે કે જેના માટે આપણને અણગમો છે, પણ એના માટે આપણે પુરુષાર્થ કરીને એના માટે પોઝિટિવ વિચારીએ છીએ. એટલે આંખ બંધ કરીને, ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે, કે આંખ બંધ કરીને એને આપણે કહીએ એનું કલ્યાણ થાવ, એની સાથે અભેદ થતા. અભેદ છે નથી જાણતું, પણ હું પોઝિટિવ બોલું છું.
તો એ પોઝિટિવ સ્પંદન બી એને પહોંચે. જો અવળા સ્પંદનો એને દુઃખ આપનારું નહીં, તો પોઝિટિવ પણ એટલું જ કામ કરે. અને એ પોઝિટિવ સ્પંદનથી આપણને એક આપણો હિસાબ ચોખ્ખો થાય. એક દ્વેષનો હિસાબ હોય તો દ્વેષનો હિસાબ ચોખ્ખો થઈ જાય. આપણા તરફથી વન સાઇડેડ બી જાય ને, એને ભલે આપણા તરફ પણ આપણા તરફથી એક પક્ષીય બી એના માટે સારી ભાવના જાય, તો એને આપણા માટે જે અણગમો હોય ને એ ઢીલો થાય. અણગમો એનો ને આપણો એક ડિસ્ચાર્જ ઉદય કર્મનો હિસાબ છે, એક પાછલા અવતારોનો એવો હિસાબ છે ગુણાનુપાત. એટલે એ ઇફેક્ટમાં છે. હવે આપણી પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના આધારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે મોક્ષે જવું છે અને તેના માટે ફાઇલોનો નિકાલ કરવો પડશે, કોઈનો ક્લેમ બાકી રાખવો નહીં પડે. એ આપણી સમજ છે. હવે એ સમજને પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં મૂકવી હોય તો ના ગમતી ફાઇલ હોય અને ચીકણી હોય ને અવારનવાર વ્યવહાર કરવાનો આવે, ત્યાં આગળ ચોથી આજ્ઞા તો હેલ્પિંગ છે જ. શુદ્ધાત્મા જુઓ, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો. અને છતાં આપણી અંદર બહુ રહેતું હોય એના માટે, તો આ પોઝિટિવ સ્પંદનો નાખવાનો પુરુષાર્થ એ કરી શકીએ છીએ, જેથી કરીને એની સાથેના જે ચીકણા ઋણાનું બંધ છે એ આખા સાફ. નહીતર શું થાય છે કે અણગમાના ચીકણા હિસાબ હોય, દ્વેષના હિસાબ હોય, એટલે એનું વાત આવે, એનો વિચાર આવે તો આપણને અણગમો. તો એ અણગમો આપણી અંદર ઉભો થાય છે, એને તોડવાનું કેવી રીતે, અથવા એને મેનેજ કેવી રીતે કરવાનું. એક રસ્તો એવો છે કે એને જોવો કે ફાઇલ નંબર 1 ને એના માટે આ વિચાર આવ્યા, મેં જોયા અને છોડી દીધા. એ આઈડિયલ વસ્તુ છે, આદર્શ છે, આવી રીતે થાય તો બેસ્ટ છે. પણ એટલું જો છૂટાપણું ના રહેતું હોય અને એના અણગમાના વિચારનો ફોર્સ વધારે વારંવાર આવતો હોય, ઘણી બધી વાર, તો એ ફોર્સને ઢીલો કરવા માટે આ એક પુરુષાર્થ છે કે એના માટે પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ કે પોઝિટિવ વિચાર એ સારો છે. અભેદતા હોય, અભેદ છે, મને એનું જાણતું નથી, પણ મારી ભાવના છે કે અભેદતા હોય. અભેદતા લાવવાની નથી, ભાવના કરવાની છે. એ ભાવનાથી કુદરત અભેદતા લાવશે. હવે હું જો ભાવના કરું આ બેકાર છે, એની સાથે જામતું નથી, એનાથી દૂર રહેવા જવું છે, તો એવું બનશે. પણ જો એટલે એની નેગેટિવિટીની અસર મારા પર થઈને મારી બી એના માટે નેગેટિવ થયું એટલે લેવલ લો થઈ ગયું. પણ જો હું પોઝિટિવ નાખીશ તો એનાથી મારી અંદર થતી નેગેટિવિટી, એના માટેના અવળા વિચારો બંધ થશે અને એને બી સારું લાગશે, પોઝિટિવ સ્પંદન જાય અને આપણા હિસાબો વહેલી તકે વિતરાગતાપૂર્વક પૂરા. વિતરાગતાપૂર્વક એટલે એને દુઃખ ના થાય ને આપણને. એટલે એ આપણા ચીકણા અમુક હિસાબ હોય દ્વેષના, એની સામે એક બીજો રિલેટિવનો ઉપાય છે. આ રિલેટિવનો ઉપાય છે, એમાં જ્ઞાન સાથે કોઈ ડિરેક્ટલી બોલવું નથી. જ્ઞાની માણસ હોય, કોઈ જેને જ્ઞાન નથી લીધું, એ પણ આ ઉપયોગ કરી શકે છે અને એને પણ હેલ્પિંગ. આપણી ભાષામાં કહીએ તો ફાઇલ નંબર 1 ને અણગમો વધ્યો અને ફાઇલ નંબર 1 આ રીતે પુરુષાર્થ કર્યો એટલે સ્ક્વેર ઓફ કરે છે. પોતાની અંદર ઉભો થતો અણગમો પોતાની સવડી સમજણથી એને છેદી નાખે છે. એટલે આ આપણા માટે એક બીજો ઉપાય છે. આજ્ઞાનો તો છે જ, પણ એટલું નથી રહેતું, ઉતારીને જોવાતું નથી. તો એનો ફોર્સ ઢીલો કરવા માટે આ ઉપાય. પછી ફોર્સ ઢીલો થઈ જાય પછી છૂટા રહીને જોવાશે કે અણગમો ઉભો થયો, મેં એને જોયો, એ વિચારને, અને સમન થઈ ગયો. છૂટા રહીને જ્ઞેય તરીકે જોયો તો અસર થતી નથી અને વિચાર તો હંમેશા આવે અને જાય, વિયોગી સ્વભાવ. એટલે એ રીતે એ અણગમો ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે અને આપણે જ્ઞેય રૂપે રહીએ એટલે આપણને અસર થાય નહીં અને શુદ્ધ નિર્જરા થઈ જાય છે. સો દેટ ઇઝ આઈડિયલ, આદર્શ. પણ ના થાય તો થોડુંક ઉતરતો પુરુષાર્થ પ્રાઇમરી અને પછી એ લેવલ પર લઈ જાય, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા લેવલ પર લઈ જાય. એટલે આ આપણા માટે આપણા સ્પંદનોથી પડઘા પડે છે.
પછી આગળ છે અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કર્મ થવાના, આત્માની ઇફેક્ટો ના સ્વીકાર કર. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે એટલે હું પોતે કોણ છું એ ભાન નથી, સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા છે ત્યાં સુધી નવા કર્મ ચાર્જ થવાના. અને આત્મજ્ઞાની ઇફેક્ટો ને ના ના સ્વીકાર. સ્વીકારતા. આત્મજ્ઞાની હોય જેની પાસે અજ્ઞાન નથી, પણ જેની પાસે સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન છે, એને પછી ઇફેક્ટો એ સ્વીકારે નહીં. કે આ બોલી ગયો મને બોલી ગયો એવું ના થાય, આ ફાઇલ નંબર 1 ને બોલી ગયો એવી રીતે આત્મજ્ઞાનીની જાગૃતિ રહે એટલે એને ઇફેક્ટ થાય નહીં. એવું કહેવાનું. ગાઢ યા તો ફૂલો ચડે દ્રશ્યોની રખ. આ બસ અજ્ઞાતા દ્રષ્ટની વાત આવે છે પરમાત્મા માટે. હા, કે કોઈ અપમાન કરે, ગાળ આપે અથવા માન આપે અથવા ફૂલ ચડાવે, તો બેઉને દ્રશ્ય રૂપે જોવું. ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 નો આવો ઉદય છે. એક સુખ આપનારો ઉદય, એક દુઃખ આપનારો ઉદય, એક પાપનો ઉદય, એક પુણ્યનો ઉદય, બંનેને જ્ઞેય સ્વરૂપે જોઈ, દ્રશ્ય સ્વરૂપે જોઈ એને દ્રષ્ટા રહેવું વિજ્ઞાતા. આત્મા બેઠો છે અંદર, બંધનથી છૂટ. બસ એ આપણી અંદરનો આત્મા એ છે, એ આપણે આત્મામાં રહીએ તો આ જે રાગદ્વેષનું બંધન છે એ એમાંથી છૂટી જવાય. ફૂલ મળે ત્યારે છૂટી જવાય અને ગાળ મળે ત્યારે છૂટી જવાય. એ ફરજિયાત વ્યવહારમાં આપણે એ ભાગમાં રહીએ, આત્મામાં રહીએ અંદર. તો એટલે દાદાની ભાષામાં કહીએ તો શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસીને દ્રષ્ટા રહીએ કે ફાઇલ નંબર 1 ને ગાળ આપે છે કે ફૂલ ચડે છે, સુખ આપે છે કે દુઃખ આપે છે, તો એ આપણા જે હિસાબ છે એ છૂટે, એ બંધન છે એ છૂટે. શુદ્ધ ઉપયોગ એ કર્મો ખપી છે. બસ આમાં એકચ્યુઅલી મહાત્મા માટે કે જેટલો શુદ્ધ ઉપયોગ રહ્યો એટલે આત્માનો ઉપયોગ રહ્યો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલો રહ્યો એટલો કર્મ ખપી જવાના, એટલે પરમાણુ શુદ્ધ થઈને નિર્જરા પામી જવા. નિર્જરા છે જ્ઞાની પાસે બેસી જવા. બસ એટલે જ્ઞાની પાસે બેસીએ એટલે ઓટોમેટિકલી જાગૃતિ વધે, જાગૃતિ વધે એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ રહે, શુદ્ધ ઉપયોગ રહે એટલે ફટાફટ નિર્જરા થઈ જાય. એટલે જ્ઞાનીનું સાનિધ્ય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણા માટે જ્ઞાનીનું સાનિધ્ય એટલે આપણે સત્સંગનું સાનિધ્ય, મહાત્માને આપતા પુત્રોનું સાનિધ્ય, જેથી કરીને આપણે પછી આત્મ જાગૃતિમાં પાછા આવી જઈએ. એ આપણા માટે. પછી પરોક્ષ રૂપે બી હોય, તમે પદ ગાઓ, વાંચન કરો, એ બી જ્ઞાનીના વચનનું સાનિધ્ય છે. એક સ્થૂળ સાનિધ્ય શરીરે, એક નિધિધ્યાસન કરીએ એ બી એક પ્રકારનું સૂક્ષ્મ સાનિધ્ય કહેવાય. પછી એના વચનો સાંભળીએ, ઓડિયો કેસેટ હોય કે વાંચીએ બુકમાં, અકરામાં પ્રમાણીમાં, તો એક પ્રકારનું એ પણ એક શબ્દનું સાનિધ્ય છે. એટલે એવી રીતે સાનિધ્યથી આપણી જાગૃતિ વધે અને આપણે ઉપયોગમાં આવીએ, શુદ્ધ ઉપયોગમાં આવીએ તો આપણને કર્મની નિર્જરા કરવામાં બહુ હેલ્પિંગ છે. અને આપણે બધાને જરૂર છે. આપણે બધાને સેલ્ફ રિમાઇન્ડર્સની જરૂર છે. મને ખબર છે નોંધ નથી રાખતો, પણ થોડોક વખત રે પાછું ભૂલાઈ જાય, પછી પાછું સત્સંગમાં કંઈક સાંભળું એટલે બીજા સાથે વાત થાય તો મારું પાછું હા નોંધ. જો કદાચ નાની મોટી રહી ગયો હોય તો હળહળાટ ઉડી જાય. એટલે નોંધ એક વસ્તુ છે. એવી રીતના પોતાપણું, માન, ક્રોધ, માન, માયેલો બધી વસ્તુમાં આપણને એક જાગૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. આત્માને અડતા નથી પરમાણુ પ્રાયા, મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યું વિતરાગ થવા. આ પરમાણુ એ શું છે? આ જરાક તમે બોલો. પ્રાયા એટલે પરાયા છે, મારા નથી પરમાણુ. પરાય, હા પરાય, ઓકે. આત્માને અડતા નથી, હા પરમાણુ પરાયા, શરીર પરાયા છે, આ પરમાણુ પરાયા છે, પારકા છે, ઓકે, મારા નથી, ઓકે. આના આત્માને અડતા નથી. શરીર બરાબર, શરીર છે પણ સામીપ્ય છે, નજીક છે પણ છૂટું છે. લેપાય માન ભાવો નથી અડતા, સંગી ક્રિયા અડતી નથી, બધા પરમાણુ પરાયા છે. આ મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યું શું કહેવાશે? એનું શું એટલે મિનિંગ? મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે ને, અચ્છા, તો મનખા ખાલી એટલે મનુષ્યનો દેહ છે. મનુષ્યનો દેહ. એટલે મનુષ્ય જન્મ એક જ ગતિ એવી છે કે જેમાંથી વિતરાગ થઈ શકે, અન્ય કોઈ ગતિમાંથી મોક્ષે જઈ શકાય નહીં. ઓકે ઓકે, એટલે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ સિદ્ધ આત્માનું એક મંદિર. મંદિર બનાવી શકાય એવું છે. જી બરાબર, જી વિતરાગ જી જી. થવાય. રાઈટ. વિતરાગ. તો સારું. એટલે બસ ચાલ, હા, જય શ્રી જય શ્રી જય આ સચ્ચિદાનંદ પદ ભુલેનાજી. જય શ્રી. આ પદ અ, લગભગ મેં 2 કે 3 વાર પહેલા બી સાંભળ્યું હતું. બહુ વર્ષ જૂનું જ પદ છે, પણ મારાથી ગવાતું નહોતું.
એનો ટ્યુન આમ લાગે સિમ્પલ પણ ગાવામાં હાર્ડ છે પાછું આ. એટલે ઘણી 2-3 વખત પ્રેક્ટિસ કરી, પાછું ભૂલાઈ જવાતું હતું ગાવાનું. મેં કહું આજે તો હવે લઈ લઉં, આ બરાબર આવી ગયું છે હવે. કાલે મેં કમસે કમ 8 વખત સાંભળ્યું, પછી આજે ગાયું આ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય જય સચ્ચિદાનંદ પુલિયાનંદજી. હા કશ્યપજીના જય પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ. હા, એક જય સેકન્ડ, એક સચ્ચિદાનંદ. સેકન્ડ. એક સેકન્ડ, એક ઓકે, ઓકે. સેકન્ડ. આમાં જે ઓલું સ્પંદનનું આવ્યું છે ને, ભુલિયાનંદજી, આપણે વાત કરીને કે આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા નવા. હવે આપણી કોઈ ચીકણી ફાઇલ હોય, આપ સામેવાળી ફાઇલ ચીકણી આપણને લાગતી હોય, હકીકતમાં હોતી નથી. આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા અવનવા. એટલે આપણે એના એના પ્રત્યે શુદ્ધ ભાવ રાખીએ અને સ્પંદન એવા રાખીએ કે એનું બી કલ્યાણ હો. જે બી ઉદય કર્મ આવે છે મારા હિસાબે આવે છે, તેઓ પણ છૂટા છે અને હું પણ છૂટો છું. તો આપણે એને ઈ ફાઇલ તરફથી આપણે છૂટી જઈએ ને, આપણે તો એના તરફથી. હા 100%. હા ડેફિનેટલી ડેફિનેટલી. યુ સી, આપણને નેગેટિવિટી ઊભી થઈ છે ને, એના માટે અણગમો ઊભો થાય છે. યુ સી, એટલે આપણો જી જી, અણગમો આપણે તોડીએ છીએ એના માટે પોઝિટિવ બોલવાથી. એમાં બે બે બરોબર. કામ બે કામ થાય છે. એક, આપણી અંદર થતો અણગમોને આપણે બ્રેક મારીએ છીએ. જો આપણે એવું નહીં કરીએ તો અણગમો કન્ટિન્યુ રહેશે, આવો છે આવો છે. જી જી, એટલે બરોબર. પોઝિટિવ કરવાથી આપણી અંદરનો અણગમોને બ્રેક મારીએ છીએ અને એ છેદાય બી છે, એમ કહે તો ચાલે. કારણ કે પોઝિટિવ બોલવું એટલે મારો અણગમો ઓટોમેટિકલી ઢીલો થઈ જાય અથવા ધીમે ધીમે નીકળી જાય. અને બીજો ફાયદો શું થાય છે કે એ સ્પંદનો સામાન્ય પહોંચે છે અને એને બરાબર. પહોંચવાથી એને આપણા માટે એક સારી ફિલિંગ આવે, સારો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એના પરિણામ શું આવે છે, કે એને આપણા માટે સારો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ વર્બલ બરોબર. ટ્રાન્ઝેક્શન થયું નથી, કોઈ વાણીથી વ્યવહાર હા, થયો નથી, પણ છતાં એક ફીલ ગુડ ફેક્ટર, એટલે એને આમ સારું લાગે. અને એનું એનું આપણને ખબર કેવી રીતના પડે કે એને આપણા માટે એક સારી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે. દાખલા તરીકે, તો જ્યારે એની સાથે ઇન્ટરેક્શન થાય, કઈ વ્યવહાર થાય, તો એ વ્યક્તિ આપણી સાથે સારું વ્યવહાર કરશે. એને કહીશું, ભાઈ જરાક તું આમ કરીશ પ્લીઝ, તો એ એગ્રી થઈ જશે. એટલે એ આપણને એક નિશાની છે કે આપણા પોઝિટિવ સ્પંદન જવાથી એના આપણા માટે પોઝિટિવિટી ઉત્પન્ન થઈ છે. એના રાઈટ, વ્યવહાર રાઈટ. એક પારાશી છે, એક વન ઓફ ધી ઇન્ડિકેટર્સ છે. આપણને એનાથી ખબર પડે કે આ થયું છે. એટલે આ પોઝિટિવ સ્પંદન બે રીતે કામ કરે છે. આપણી નેગેટિવિટી તોડે છે, એનામાં યા, પોઝિટિવ. એબ્સોલ્યુટલી. અને એનાથી મેઇન વસ્તુ શું થાય છે, આપણા ઓલા રેફરન્સમાં મેઇન વસ્તુ એ થાય છે કે આપણી ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ થઈ જાય. હા, રાઈટ, રાઈટ. એની સાથે જે ઋણાનુબંધ રાગ દ્વેષથી ભેગા થયા, એ દ્વેષનો ભાગ ઓગળી જાય છે, એટલે આપણે સેપરેટ થઈ જઈએ છીએ. એ ઋણાનુબંધ ચાલો, ચોખ્ખા થાય છે અને આપણી ભાષામાં એ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ. એટલે ક્લેમ રહેતો નથી ને આપણે મોક્ષ માર્ગમાં એક એનઓસી મળી ગયું એના તરફ. બરાબર, બરાબર. એ આપણી ભાષામાં મોટો ફાયદો. એટલે આ પુરુષાર્થ એકદમ માંડવા જેવો છે. જ્યાં બી અણગમો છે ને, આપણા તરફથી આપણે ચોખ્ખા થઈ જવું, સામેવાળી ફાઇલ એની મેળે જ આપણને છોડી દેશે. હા હા, એ હું ઘણી વાર દાખલો આપું છું, ચોથી આજ્ઞા સમજાવું ત્યારે, ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ. જરાક આ કાઢજે તો. ગૌરાંગ, જસ્ટ રિમૂવ ધ કોલ. હા, અલ્પેશ. એટલે આમાં હું ટિપિકલી એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં છું કે આપણે છે ને, કોઈ સાથે અણગમો છે, હું એને ગમતો નથી, એ મને ગમતો નથી, એટલે આમ દ્વેષ વાળો હિસાબ છે એનો, આંટી હું કહું. પણ જો હું અંદરથી નક્કી કરું એ સારો છે કે મારે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે કે એનું ભલું થાવ, એટલે મારી આંગળી હું સીધી કરી નાખું છું, એટલે એ આમ સરકી જાય, આપણો દ્વેષ હિસાબ પૂરો થાય. ભલે એ ચોખ્ખો થાય પણ આ સરખી જવાય. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ બરોબર, હેપન. બરોબર. અને કરેક્ટ, આ કરેક્ટ, પોઝિટિવ કરેક્ટ. સ્પંદન થી તો એનું બી સીધું થઈ જાય. બરોબર, બરોબર. એનાથી આપણને પણ અંદર છે ને બહુ જ શાંતિ લાગે પછી. બહુ શાંતિ કોઈ, લાગે. હા, કે આપણે મુક્ત થઈ ગયા અને સામેવાળી ફાઇલ પણ મુક્ત થઈ ગઈ આપણાથી. હવે આપણને હા હવે દ્વેષભાવ રહ્યો નહીં જરાય. હા. અને એમ કરતા કરતા થોડીક આપણી એક જાગૃતિનું લેવલ વધે ને, પછી એબ્સોલ્યુટલી, એબ્સોલ્યુટલી. એનાથી આગળનું એક થાય, આગળનું શું થાય, આપણે છૂટા પડીને ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ કે આ ફાઇલ નંબર 1, આ પુલિન તારો હિસાબ છે, પુલિનનો હિસાબ છે અને પુલિન પુરુષાર્થ છે.
ભૂલીને એના માટે ઓકે, પ્રેપરેશન નાખે છે, એવું છૂટાપણું રહેશે. અત્યારે એટલે હું ફાઇલ કરું નંબર છું એ ભાગ રે, અંતરાત્મા દશાએ રે, પછી ઓલો કરે છે એ છૂટા પડીને એના સાફ કરવા માટે કરે ને ત્યારે બહુ આનંદ આવશે. કર ભાઈ, તું તારું સાફ કર, આઈ એમ વિથ યુ, તો આપણને ઓર બી મજા આવે. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને પોતે નિરખે છે અને હા ફાઇલ નંબર 1 આગળ પ્રતિક્રમણ કરાવડાવે. હા, ઓકે, પ્રતિક્રમણ ઇન ધીસ કેસ પોઝિટિવ હા સ્પંદન, અધરવાઇઝ પ્રતિક્રમણ. વોટ હા એવર, જી જી હા જી જી, whatever. હા, ઓકે ઓકે પછી ઓકે, પછી તો વધારે ઈઝી થઈ જશે પુરુષાર્થ. ઇઝ એ આગળની સ્ટેજ છે. કરેક્ટ કરેક્ટ, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી जी जय जय। सच्चिदानंद कश्यप जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, बधाने जय सच्चिदानंद, गौरवानंद जी जय सच्चिदानंद, पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। जो आपने जो बताया ना अभी जो है उसमें प्राय ठीक है, वो मैंने डिक्शनरी में देखा था, उसमें जत्थो ही लिखा था। मुझे वो मीनिंग थोड़ा सही लगा था। आप वो भी जो भरत भाई बोल रहे वो भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जत्थो भी लिखा था तो वो भी फिट बैठता है सर, अगर देखे तो ऐसे नहीं नहीं, मतलब। एक मिनट, वो जत्था, नहीं नहीं, सुनो सुनो, परमाणु का जत्था ही होता है, वो क्वांटम हो गया, लेकिन वो हाँ। हमारा नहीं है ऐसा क्वांटम, वो बहुत लो रेफरेंस हो जाता है वो। एक्चुअल हम्म, एक्चुअल जो है ना, इसका मीनिंग इधर इसके साथ जो लगता है ना, वो पराया होता है। हाँ नहीं ठीक है, वो है जी जी। वैसे ही। ठीक है, धन्यवाद। कैसे? अच्छा उसमें वो क्या मैं। होता है, एक शब्दार्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है, और एक ये इसका भावार्थ होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग होता है। हाँ वो ठीक है, तभी इसलिए पूछना पड़ता है ना थोड़ा कि क्या लिटरल मीनिंग क्या है वो। नहीं और बराबर है, क्योंकि वो कविराज की भाषा थोड़ी अटपटी होती है। एक मीन्स एक हाँ काव्य के इसलिए। रूप में होती है, अटपटी इन द हाँ, सेंस इट इज गुड, बट इन द तो अपने को थोड़ा क्लैरिफिकेशन हेल्प थोड़ा मिलेगी। चाहिए होता है ना, गाइडेंस चाहिए। हम्म। अच्छा मुझे ये पूछना था, आप मल्टीटास्किंग के बारे में थोड़ा आपने बताया था, मल्टीटास्किंग के बारे में वो बताइए कि महात्माओं के लिए मल्टीटास्किंग का क्या पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ा बताइए जो। हाँ, वो सेकंड स्टेज वाली बात है। अभी क्या है, अभी आजकल के जमाने में हम्म, चित्त इतना अशुद्ध है और बिखराया हुआ है ना, तो हमको हमको एक पूरा काम भी उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में नहीं कर पाते हैं। सो टू बिगिन विथ, आजकल मैं कल ही एक अपने महात्मा के एक टीनेज बच्चे के साथ बात कर रहा था, एंड डिस्कशन में ऐसी बात निकली कि इनिशियली वी नीड टू बी मोर फोकस्ड। फोकस्ड इन द सेंस जो मैं कर रहा हूँ वहीं पे मेरा चित होना चाहिए। अगर मैं हम्म, पढ़ाई कर रहा हूँ तो 100% उसमें, या मैं दूसरी कोई एक्टिविटी करता हूँ तो 100% उसमें होना चाहिए टू बिगिन विथ। हम्म, वंस वी डेवलप दैट अटेंट, अभी आजकल के अटेंशन स्पैन सबका बहुत कम हो गया है, इससे तो रील्स वील सब निकला है। कैजुअल 2 और 3 मिनट वीडियो, पीपल डोंट हैव टाइम टू स्पेंड मोर देन दैट ऑल्सो, इतना अटेंशन ही नहीं रहता है। वो एक जनरल है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। सो फर्स्ट थिंग इज टू कल्टीवेट द शुद्ध उपयोग और टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हमारा चित जहां भी है लंबे समय तक रहना चाहिए, टू बी फोकस्ड, दैट इज स्टेप वन। अभी जैसे जैसे हमारा चित शुद्ध होते जाएगा, सो आहिस्ता आहिस्ता, वैसे वैसे हमारी जागृति बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी जागृति एक लेवल के ऊपर बढ़ जाएगी, उसके बाद में मल्टीटास्किंग विल हैपन, हम कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज नॉट इजी एट अ लोअर लेवल ऑफ चित्त शुद्ध चित्त शुद्धिकरण। चित्त शुद्धिकरण एक लेवल पे जाना चाहिए, एक लेवल पे जागृति बढ़नी चाहिए, उसके बाद मल्टीटास्किंग इजी हो जाएगा, क्योंकि वी आर एबल टू ग्रास्प थिंग्स वेरी फास्ट, अटेंड टू दिस फेलो दैट फेलो, टक 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 टक, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, बाद में उसका भी है, बीच में फोन आया तो यस आई अटेंड टू हिम, बट मेरा क्या कर रहा था मैं भूल नहीं जाऊंगा। सो दैट विल हैपन। अभी क्या है कि नाउ इट इज अ वर्किंग कॉम्प्रोमाइज, इन द सेंस एट टाइम्स वी मे हैव टू मल्टीटास्क एट टाइम्स, बट उसके आगे एक थर्ड लेवल पे जैसे हमारी जागृति बढ़ती है, एंड मोर देन दैट जैसे हमारे फाइलों कम हो जाती, उसके बाद ये मल्टीटास्किंग जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वी विल बी एबल टू अटेंड वन थिंग एट अ टाइम। फाइल्स विल आल्सो कम स्लोली स्लोली एंड गो अवे। इंसिडेंटली कोक आ गया दो, तो विल बी अटेंड टू टू पीपल, जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं दूसरा बीच में इंटरप्ट किया तो उसको अटेंड करके वापस आई गो बैक टू द फर्स्ट पर्सन, दैट विल हैपन। तो मल्टीटास्क इफ नीडेड
will happen, will happen. You और need to first इसमें focus. इसमें और चीजें भी हैं। देखिए अभी आज के टाइम में हम अपने सामने जो आता है ना इंफॉर्मेशन जो आता है वो एक तरह का नहीं आता है। वो बहुत बात जाति जाति का आता है, बहुत अलग अलग प्रकार का एक साथ आता है। उसमें से हमको फिर उसमें से जो है वो चूज करना पड़ता है, और कम से कम पढ़ेंगे तो तभी तो उस पे थोड़ा एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना, फिर चूज करेंगे। तो उसमें उसमें जो है रैंडमली जो है वो रैंडमली मतलब आप बात कर रहे फोकस की, वो ऑर्गेनाइज करने का, उसमें जो है वो करने का थोड़ा ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें वो फोकस ज्यादा होता बैठता है। अगर रैंडम होता है तो उसमें फोकस कम कम होता है। ठीक है। और जो खासकर जो न्यू बिगनर्स के लिए, उनके लिए ऐसा ये प्रॉब्लम आता है जो है आप देख सकते हैं। जो वो मल्टीटास्किंग जो है वो हमारे संजोगी ऐसे होते हैं कि वो प्रमोट करते हैं मल्टीटास्किंग को जो है, और फोकस को जो है वो कम करते हैं। जो चित्त को जो है चार चीज अलग साथ में आती है, जो है आपको जो है मैसेज अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो आप फोकस जो है वो कम नहीं होता, बताइए। नहीं, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल वी आर बम्बार्डेड विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ और वाइड स्पेक्ट्रम, अलग अलग, डिफरेंट हाँ, काइंड ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। टॉपिक्स, हाँ, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वी आर बम्बार्डेड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रू। आज आज बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड ये सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, तो दुनिया भर के मैसेजेस और वो कोट्स वगैरह सब आते रहते हैं। न्यूज़पेपर खोलो तो उसमें भी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे वी विल हैव टू डू, ऑल ऑफ अस विल हैव टू डू दिस, एक रेशनिंग करना पड़ेगा कि जो मेरे को काम लगे और नेसेसरी है उतने ही न्यूज को मैं पढ़ूंगा, जानूंगा, देखूंगा, एंड अदर्स आई विल हैव टू जस्ट लर्न टू बाईपास, आई हैव टू लर्न टू लिव इट। मतलब ये क्या है, थोड़ा ये भी देखूं, थोड़ा ये भी देखूं, थोड़ा ये जनरल नॉलेज है, जापान में ये बुलेट ट्रेन निकली है, जापान में ऐसा कुछ निकला ना, अमेरिका में ऐसा हुआ, और देन समवन से द वर्ल्ड बेस्ट ब्रिजेस एंड बेस्ट फ्लावर्स एंड हजार जाति, वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव, बट देन वी हैव टू आस्क अवरसेल्फ, इज इट ऑफ एनी यूज टू मी? क्या उसके बिगर मैं सरवाइव हो जाऊंगा? तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन लाने वाली बात है, एंड वेयर वील हैव टू डू द रशनिंग एंड टेल अवर सेल्स, अपने आप को बोलना है, देखो इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की है, बट अपने को आज काम की क्या है, केवल उसी के ऊपर फोकस करें एंड लर्न टू बाईपास। आई हैव लर्नड इट माई सेल्फ। आते तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुड थिंग विच इफ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग, बट देन आई सेड फॉरगेट इट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू स्किप इट। मैं उस पर मैं ध्यान देता नहीं हूँ, एंड ग्रेजुअली द मोर आई एम फोकस्ड ना, तो फिर मुझे वो खींचता भी नहीं है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आती है मैं इमीडिएटली उसको बाईपास कर देता हूँ, एंड आई ओनली फोकस ऑन व्हाट इज ऑफ नीड टू मी और व्हाट इज ऑफ हेल्प टू मी, मुझे क्या मदद करेगी, क्या हेल्प करेगी, उस पर मैं आ गया हूँ स्लोली स्लोली, एंड देन इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस टिल वी फाइन ट्यून। एंड यू नो व्हाट, ये बुद्धि का वाला भाग है। बुद्धि को नई वैरायटीज, नया जानना, ऐसा थोड़ा रहता है। इट इज अ बुद्धि का एक खुराक है। इसके बाद बुद्धि कम है, दे आर नॉट बॉदर्ड दुनिया में क्या हो रहा है, जीके क्या है, जनरल नॉलेज की पढ़ी नहीं है। मैं अपने आप को तो ये भी बता रहा, 3 महीना अमेरिका कहता है तो तू पढ़ता भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, तो मालूम भी नहीं इंडिया में क्या हो, तो भी चलता है ना, कि लाइफ इज वर्किंग ना, देन व्हाई यू शुड नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग? सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ हैंडलिंग our curiosity level, number one. Number two, और इसमें वो तो बाहर की दुनिया में भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि संघ में भी जो बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर होते हैं, तो उसमें उसके भी लिए जो मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, है। आएंगे। यू विल गेट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स ऑफ सूत्रस, वीडियोस और कोट्स और वेरियस टॉपिक्स। तो रीड व्हाट यू फील इज ओके, बाकी छोड़ दो। वो हियर डिसाइड हियर द कर क्रक्स नहीं, नहीं द वो क्रक्स नहीं होता है जो है, वो सूत्र आते हैं, और वो सब आते हैं, 5 सूत्र आते हैं रोज के, या 10 सूत्र आते हैं, 10 अलग अलग होते हैं, तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो हमारा इतना लेवल नहीं है, हमारा उतना दर्शन नहीं है मैं समझ। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मेरा एक स्पिरिचुअल गोल नक्की होता है, मेरा एक पुरुषार्थ का एक डायरेक्शन हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर वाला बात आता है कि भाई मेरे गोल में ये चीज सपोर्टिंग नहीं है, तो आई मे जस्ट पुट इट असाइड फॉर द टाइम। नथिंग इज रॉन्ग, मैं उसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट अटेंड टू एवरीथिंग, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो और होगा क्या, माय एक्सपीरियंस, कि व्हेन आई हैव सेट अ स्पिरिचुअल गोल,
कि मुझे ये जागृति के मुकाम पे पहुंचना है या ये पुरुषार्थ करना है, whatever it is, I will get the required information. मुझे वो स्पिरिचुअल गोल में सपोर्ट करने के लिए जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान जो भी चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलता है। मेरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा, मैं वो ले लूंगा एंड आई मूव अहेड। So that auto filtering will happen. First thing we will have to do it, and then second thing it will start happening. थोड़ा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे टॉपिक वाइज बनाते थे वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें फोकस करने में हेल्प करता है, और उसको HTML अगर फॉर्मेट में ऐसे आप बना सके, ठीक है, और भी बना सके तो फोकस करने में अच्छा रहेगा और समझने में चीजों को अच्छा रहेगा। हाँ, ओके, देखते हैं, या श्योर। और दूसरा एक और चीज मुझे पूछना है, प्रतिक्रमण जो विधि है उसमें दादा भगवान की साक्षी है, दूसरे से नामधारी, उसमें दूसरे के नामधारी से माफी मांगते हैं कि दूसरे के शुद्धात्मा भगवान से माफी मांगते हैं? शुद्धात्मा भगवान। तो हमने इसेंशियली देखिए, इसेंशियली प्रतिक्रमण का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? प्रतिक्रमण का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हम भगवान के सामने दोष की आलोचना करते हैं, उसके क्षमा मांगते हैं और दोबारा न करने का निश्चय करते हैं। अभी कौन से भगवान के पास हम आलोचना करते हैं? तो एक हमारे दादा भगवान के पास, और जो सामने की व्यक्ति है उसके अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है उसके पास। तो इन दोनों भगवान को हम संबोधन करते हैं और उनके पास आलोचना मांगते हैं। दैट इज दी थिंग। तो प्रत्येक दादा भगवान साक्षी देदारी डैश डैश ना મન વચન કાયથી જુદા એવા શુદ્ધાત્મા ભગવાનની સાક્ષીએ મન આ વ્યક્તિ સાથે આટલું 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 થયું, तो उसके शुद्धात्मा के सामने हम ये दोष जाहिर करते हैं और क्षमा मांगते हैं। दूसरे के शुद्धात्मा से क्यों माफी मांगते हैं? हाँ, भगवान के सामने दोष जाहिर करने हैं तो कौन से भगवान? वो उनके अंदर के शुद्धात्मा भगवान और एक दादा भगवान, हमारे जो गुरु है वो। एक्चुअली हमने दोष तो उनके उनकी प्रकृति के साथ किया ना। हाँ हाँ, तो उनकी साक्षी में उस व्यक्ति के साथ हुए दोषों की हम क्षमा मांगते हैं, तो पहुंचेगा तो उसके अहंकार को ही। हाँ, हमारी क्षमा की प्रार्थना जिसको दुख हुआ है उसको हुआ, यानी उसके अहंकार को ठेस पहुंची है, पहुंचेगा उसी को ही, पहुंचेगा उसी को ही। बट दिस इज द फॉर्मेट। पर उसका उसका थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हम करते हैं, जो है मतलब दूसरे के शुद्धात्मा भगवान को क्यों हम अब बोलते हैं, जो है उनके उनके जो है अहंकार को क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा क्या रीजन है? जो रीजन अभी मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है व्हाई वी डू दैट। उसके पीछे एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी है, बट अभी मेरी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, इसलिए मैं इसका जवाब ऑन होल्ड रखता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। आई हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, बट अंटिल आई एम वेरी श्योर कि पब्लिक फोरम में इसको बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन द स्टेटमेंट्स वी मेक। सो आई कीप दिस ऑन होल्ड, बट देयर इज अ वेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। दादा भगवान ने इवन कोई भी विषय का दोष होता है तब भी ये बात बताई थी कि जेना माटे आकर्षण થાય છે એના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે અમે માફી માંગીએ છીએ। इसकी देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। आई हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, बट अभी आई कीप इट ऑन होल्ड। जब क्लैरिटी होगी तो मैं आई विल कम बैक टू यू। मैं भी शुद्धात्मा होता हूँ, सामने भी शुद्धात्मा है, एंड देयर इज अ वेरी साइंटिफिक सटल प्रोसेस दैट हैपेंस। आई कीप इट ऑन होल्ड। दैट इज व्हाई दादा ने एक फॉर्मूला दे दी कि तुम प्रतिक्रमण उसके सामने के शुद्धात्मा से करो। इट वर्क्स, आई टेल यू, इट वर्क्स। आप बोलिए छे ने दादा भगवान आ फाइल ने संभावे निकाल कर, इसके पीछे बहुत एक सूक्ष्म विज्ञान तो है, बट इट इज एन it's under my analysis for the moment, so I leave the answer on hold until I get the full clarity। ठीक है, एक लास्ट पूछना है मुझे कि ये जो हम देवों का आह्वान करते हैं, ठीक है, वो जो है अभी एक तो विधि के पहले हम आह्वान करते हैं, वो मतलब ज्ञान विधि के पहले आह्वान करते हैं, तो लेकिन ये जो है, लेकिन हमने इसमें अडेप्ट किया हुआ है, ये जो हमने जो देवों का आह्वान जो पद है वो एक्चुअली तो विधि के हिसाब के पहले, जो ज्ञान विधि के पहले के लिए बना था जो है,
लेकिन हम वो जो है थोड़ा अडेप्ट किया है कि हम दूसरे भी मतलब कोई भी कार्य के पहले हम आह्वान करते हैं, ऐसा ऐसा है मतलब उसमें उसका भावना क्या है? हाँ हाँ अभी हाँ कि जब हमें एक बड़ा कार्य है, शुभ कार्य करना है, तो हम देवों को विनंती करते हैं कि आप भी पधारे और ये हमारा कार्य निर्विघ्न रूपे पूरा। हम्म। 24 कलश की कीर्तन भक्ति होती है, तो उसके पहले भी हम बोलते हैं। सो वी सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स, देव देवियों के हम आशीर्वाद। हम्म। लेकिन तो लेकिन जो है उसमें जो पहला लाइन है, अंधारा कोटि वर्षना पल सातमा उलेचे छे, ठीक है, वो वो उसको आप मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बताएंगे जो है, मतलब उसके लिए क्या बेसिकली ये तो ज्ञान विधि के पहले वाली बात है। इसका ज्यादा भगवान की हयाती में उसको खाली ज्ञान विधि के पहले ही बोलते थे। इसका हाँ। इतना ज्यादा यूज होता ही नहीं था। बट बाद में एज एज थिंग्स इवॉल्व्ड एंड तब दादा की अभी स्कूल हाजिरी नहीं है, तो देन हाँ। वी आर एक एक देवों को एक आह्वान है बस। बेसिकली वी आर प्रेइंग एंड सीकिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाकी ज्यादा उसमें डेप्थ में जाने का कोई वो नहीं है। मतलब कि ये जो है एक शुभ कार्य। कुछ चीजें ऐसी होती जो पहले होती थी और जो है मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वो कंटिन्यू है, लेकिन उसका भाव बदल गया है। पहले उसका भाव कुछ और होता था, अभी कुछ भाव बदल गया, वही वर्ड्स वही कहते नहीं, हैं। भाव भाव आई वुडंट से भाव बदल गया है, भाव तो वही है। भाव तो उसका कोर कॉन्सेप्ट वही है। पर पहले केवल ज्ञान विधि के समय उसको बोला जाता था, एंड इट वाज ये भी ऐसी दाता की कृपा से ज्ञान विधि के लिए ये बन गया है, जिसने भी बनाया होगा ये देवों का हवन। तो नहीं, आज के टाइम में ज्ञान विधि तो होती नहीं ना, वो अंधारा कोटि ना वर्षना पल साठमा उलेचे छे, उस टाइम जो भाव था कि जो हमारे जो युगों युगों के वो जो है जो अंधेरा है वो हटेंगे, तो लेकिन आज के टाइम में वो तो हमारा तो वो हो गया ना, जो है ज्ञान विधि हो गया, तो वो भाव नहीं रहा ना जो है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भले इट इज दो लाइन लिटरली लेने की जरूरत नहीं है, लिटरली हाँ। लेने की जरूरत नहीं है। इट इज अ जनरल इन्वोकेशन टू द देवी देवतास। एक सामान्य देवी देवता को एक आह्वान है कि आप पधारे और आशीर्वाद दें। मतलब आपको अभी के रेफरेंस में थोड़ा इसका मीनिंग एक भावार्थ लेना है, उसको भाव शब्दार्थ नहीं करना। भावार्थ क्या लेना है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या लेना है तो वही कह रहा हूँ, देवी देवता के हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये कार्य सफल हो, विघ्न विघ्न रहित सफल हो। हाँ तो लेकिन वो तो उसके आगे की लाइन में मांग रहे हैं ना कि जो है कि जो है कि आप 33 देवी कोटि देवी देवताओं शांति काजे आवजो, ठीक है, वो तो आगे की लाइन में मांग रहे हैं। ये पहले की लाइन में जो है वो सिर्फ हम ये जो पहले जो। तो वही तो आपको कह रहा हूँ कि लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। इट अच्छा। वॉज एट वन अपॉन अ टाइम फॉर समथिंग एल्स, अभी वो वी हैव कंटिन्यूड द सेम प्रेयर विद अ डिफरेंट इंटेंशन। हाँ, तो डिफरेंट शब्द मत इंटेंशन जो पकड़ो है। आप। हाँ तो डिफरेंट इंटेंशन हुआ ना जो है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है कुछ इंटेंशन डिफरेंट थोड़ा। इंटेंशन यानी बेसिकली वी आर इन्वोकिंग द गॉड्स फॉर दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटी एज अ प्रीएम्बल टू इट। ये शुभ कार्य करने से पहले मैं देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ इस चीज के लिए, बस उतना ही है। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ इतना इतना जो आज के टाइम में ये भावना के साथ जो हाँ है। हाँ, ठीक है, ऐसे प्रेयर ऐसे। सेम रखी हुई है, वी हैव नॉट चेंज द प्रेयर। हाँ ऐसे और भी होता है प्रतिक्रमण के जैसे पर्यूषण के टाइम में दूसरा एक सीमंत स्वामी को भी इन्वोकेशन के लिए ऐसे प्रेयर बनी हुई है, वो करते हैं, लाइक लोग जो है यहाँ पर भी करते हैं। तो ऐसा ऐसा ये थोड़ा सा जो एक तरह का ट्रेडिशन भी जो है बना हुआ है, जो ऐसे मैंने देखा है जो है। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद का सभी। ओके, सुबीर जी। जय सच्चिदानंद पुलिनान जी, जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। पुलिनान जी, आपका जो वाइब्रेशन वाला जो पाथ है, वो प्रतिक्रमण वाइब्रेशन वाला जो दूसरे को पहुंचता है, तो मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस का। अभी हमारा एक 1.5 महीना का एक फैमिली रियूनियन जैसे बोल सकते हो। मतलब हमारा वाइफ का जो सिस्टर ब्रदर जो भी है, और उसका फैमिली का, मतलब हस्बैंड वाइफ ओनली, कपल ओनली, नॉट किड्स। तो बाहर से भी मेरा क्या बोलता है, सिस्टर इन लॉ, हु विच इज सीनियर टू ऑल,
तो वो थोड़ा उनका नेचर है, थोड़ा अथॉरिटी नेचर है, और सबको डटते रहता है और ऐसा है। मतलब वो किसी को उसको पसंद नहीं है, ऐसा देखने जाएगा तो मुंह में कोई बोलता नहीं है क्योंकि डांट ही पड़ता है। तो ऐसा उनका पहले से सबका एक क्या बोलते हैं नेगेटिव उनका जो बोलते हैं ना ये ओपिनियन बैठा हुआ था, उसके हिसाब से हमारा भी व्यवहार थोड़ा वो नेगेटिव चलता रहता था, मतलब उनके प्रति सबका ही। लेकिन मैं सबका बात नहीं करूंगा, मेरा ही खुद का बात करूंगा। तो मेरे को खुद को लगा यार ये जो 1 डेढ़ महीना का जो टाइम है इसमें उनको मतलब हमारा मूड खराब करके और ये व्यवहार को इसमें तो आनंद ही लेने का सबका रियूनियन को। तो मेरे को मन में से ऐसा आवाज आया तो तुम प्रतिक्रमण करो, तो सुबीर को बोलो प्रतिक्रमण करे। तो मैंने उसका प्रतिक्रमण किया हुआ है, और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वो सामने से हमारे मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन मतलब बातचीत कर रहा, मैं भी उनके प्रति कोई ऐसा अभाव भाव नहीं रखा, और उनके साथ मेरा क्या बोलते हैं बहुत कार्डियल जैसा रिलेशन रहा ये पीरियड के दौरान। शुरुआत में थोड़ा बिगड़ा था जो, उसके बाद मैंने ये मतलब स्टेप लिया था, तो मेरे को बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये जो वाइब्रेशन का जो बात आप बोला ना, ये रियली वर्किंग एक्चुअली, वो बोलना चाहता हूँ। आप प्रतिक्रमण करते हो उसका अभाव दुर्भाव ना हो, एक मन तिरस्कार ना हो, और उसके शुद्धात्मा के मतलब जैसा विधि में विधि किया था लगभग 2 3 दिन से मैंने विधि कर रहा था, तो उसका इफेक्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला। बराबर है। हाँ, ये तो है। कोई भी चीज साइंटिफिक है तो किसी को भी अनुभव तो होगा, एक्सपीरियंस तो होगा ही। इसलिए ये साइंस दादा भगवान ने ओपन किया है कि जैसे स्पीच और एक्शंस, वाणी और वर्तन सामने को असर करता है, उसी तरह विचार भी असर करते हैं। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग थे, अवर एंसेस्टर, उनको मालूम था। इसलिए अगर किसी की टीका करते हैं ना तो बहुत धीमा आवाज में बोलते हैं। और फिर एक कहावत हम्म निकली है कि दीवारों को भी कान होते हैं। कहने का मतलब आप हम्म जो बोलेंगे वो सुन जाएगा। इन अ सटल वे तो वाइब्रेशन उसको पहुंच जाते हैं। तो वी शुड नॉट ये थिंक अबाउट इवन हम्म थॉट लेवल पे भी। इसलिए शायद वाणी वर्तन मनन बताया, मनन लेवल के भी हम्म शायद हम शक्ति मांगते। दैट इज वेरी ट्रू। इवन ये साइंस हाँ है। ये तो ठीक। हाँ ये तो ठीक है, सामने हम सामने है उसको प्रतिक्रमण किया मेरा। इसका और मतलब एक्सटेंडेड मैंने इसका लाभ भी लिया था। जैसा हमारा मतलब सन डॉटर वो सब बाहर रहते, मतलब वो यूएसए में है। नहीं नहीं, ये तो इधर प्रतिक्रमण तो वर्क्स फॉर अ पर्सन इन फ्रंट और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ तो मैं वो भी बोलना जगह में चाहता हूँ। होगा तो वो उसको पहुंच जाता है। नॉट ओनली दैट, अगर गुजर भी गया, इंसान हाजिर नहीं है ना, तो भी आपका वो अच्छा बहुत अच्छा। जल्द काम हो जाता है। इवन पर्सन इज डेड, गुजर गया, अभी ओके आपको ओके। याद है अरे उसके साथ तो मैंने ऐसा ऐसा दुख दिया था या दोष किए थे, उसके भी प्रतिक्रमण करो तो वो भी साफ हो जाएगा। ओहो। हमारे अच्छा अच्छा। सामने, हमारे घर में, हमारे सिटी में, हमारे वर्ल्ड दुनिया के किसी भी कोने में या हम्म। नहीं है तो भी पहुंच जाता है। हाँ ये भी मैंने डिस्टेंस में भी वो काम करता है, वो भी मैंने देखा हुआ है। वो हाँ मतलब करेगा, किसी के डेफिनेटली साथ करेगा, डेफिनेटली किसी करेगा। किसी का साथ किसी का साथ कुछ भी बातचीत में मतलब क्लैश जैसा हो गया, और फिर वो किसका, मैं वो नहीं देखता हूँ जी मेरा गलती है क्या उनका गलती है। मैं तो मेरे तरफ से मैंने माफी मांग लेता हूँ शुद्धात्मा को ये करके। और बाद में देखता हूँ नेक्स्ट जो बातचीत का जो भी होता है, उस टाइम पे दोनों का रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो पहले का ग्रज नहीं रहता है, जे पहले का हमारा ऐसा विवाद हुआ था वो नहीं रहता। ये भी मेरे को मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। नहीं, इट्स वेरी गुड। सो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग है, इट्स वेरी गुड। ठीक हाँ वो आप जैसा बोल रहे हैं ना ये वो मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल रहा है। जो सामने वाला प्रतिक्रमण करे कि नहीं करे, लेकिन आप प्रतिक्रमण करो तो जो आपने आंगली में दिखाया ना वो स्ट्रेट हो जाता है, फिर वो निकल जाता है। मैं उस प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह से मेरा फिट हो गया। तो हमको खुद को करने का, सामने वाला क्या कर रहा है वो नहीं देखो। क्योंकि हमको छूटना है। हाँ हमको छूटना है, बराबर। बराबर बराबर। अच्छा मैं एक सत्संग में सुना था जे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक आपका लाइफ में प्रॉब्लम है प्रश्न है, तो तब तक आपने व्यवस्थित शक्ति समझा नहीं पूरा पूरा पूरे पूरा। ये इसको थोड़ा सा और आगे मतलब
बना सकते हो, मतलब थोड़ा और एक्सप्रेस करो उसको। आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपने जब सुना? तक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका, और नहीं तो उसको मैंने दूसरी तरह से ले लूं, आपने आपका कंप्लेन है, कुछ भी कंप्लेन है, तो इसका मतलब आपने व्यवस्थित शक्ति को बराबर समझा नहीं। व्यवस्थित शक्ति फुल समझा तो कोई कंप्लेन आपका रहेगा नहीं। एक बात निकल के आया था। हाँ, बेसिकली हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आता है, हम्म हमारे कॉजेस के इफेक्ट हमारे सामने आती है। और हम्म व्यवस्थित इज एन एग्जीक्यूटिंग फोर्स जिसको कह सकते हैं, एक शक्ति है जो हम्म इसको रूपक में लाती है। तो मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया है, ये बात समझ में आती है बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ व्यवस्थित, तो फिर कोई फरियाद रहेगी नहीं, क्योंकि सामने वाला स्वतंत्र करता नहीं है, वो नैमित्तिक करता है। वो बात समझ में आनी चाहिए, एंड दैट विल हम्म आई थिंक कम मोर इनटू प्ले, यानी हमारी अधिक समझ में आएगा जब हम हमारी प्रकृति से सेपरेट हो जाएंगे। मैं शुद्धात्मा की राइट सीट पे रहूंगा और फाइल नंबर 1 से सेपरेट रहूंगा, तो फाइल नंबर 1 के साथ जो हो रहा है वो उसको मैं देख पाऊंगा एज ए नेबर। एंड हम्म। जब मैं एज ए नेबर देख पाऊंगा तो असर नहीं होगी, और असर नहीं होगी तो कोई कंप्लेंट नहीं है, या फाइल नंबर 1 का राइट हिसाब खुद से हो रहा है ऐसा मुझे जागृति में दिखाई दे। फाइल राइट नंबर 1 पड़ोसी के हिसाब खुद से हो रहा है, हम्म अगर मैं उसको देख पा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये उसका कॉज की इफेक्ट आ रही है बाय वे ऑफ व्यवस्थित। एंड हम्म। अगर आप हो रहा है तो फिर कंप्लेंट की कोई गुंजाइश रहती है। कॉम्प्लेन तो तभी होएगा जब हमको व्यवस्थित में जो भी रिजल्ट इफेक्ट जो भी हमारे सामने आता है संजोग के हिसाब से, मतलब तो वो हमारा स्वीकार नहीं होता है तो ही कंप्लेन होता है। हाँ, ऐसा स्वीकार नहीं एग्जैक्टली। होता है तो कंप्लेन। हाँ, हमारे हमारे को स्वीकार नहीं होता है, हमको अभी चूकता है, सामने वाला का हम्म व्यवहार चूकता है, इसने ऐसा किया, तब तक वो व्यवस्थित स्वीकार नहीं हुआ है कि सामने वाला निमित्त हम्म था मुझे दुख देने में, हिसाब तो मेरा था। और यानी हम्म प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मुझे ये भुगोटा आया, वो मेरी गलती हम्म। दिखाई नहीं देती है, इसलिए भुगोटा स्वीकार नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। मानो कि मैंने मेरे को पैर दुखने लगा अचानक, ये क्यों दुख रहा है मुझे पता नहीं चला, लेकिन अगर याद आता है वहां पे जरा ठोकर लग गई थी, बातचीत में कर रहा था इसलिए मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन ठोकर लग गई, लेकिन अगर मुझे पता चलती कि वहां पे ठोकर लगी इसलिए दुख रहा है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं, इफ आई अंडरस्टैंड द कॉज। ये तो हम्म फुल वन साइडेड एग्जाम्पल, बट ड्यूअल एग्जाम्पल होता है कि मैंने इस व्यक्ति को दुख दिया या मैंने ये दोष किया है, इसलिए वो दोष का पनिशमेंट इस व्यक्ति के निमित्त से आ रहा है, वो फिर एक्सेप्टेंस लेवल जल्दी हो जाएगी। So राइट if we are able to introspect and find out the root cause at our level, मेरे मन वचन काया में क्या दोष हुए थे जिसकी वजह से ये बाहर आया है, तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। और अगर नहीं मिल पा रहा है वो क्या दोष हुए थे, हम्म तो राइट दादा का वो प्रिंसिपल भोगवे थे नहीं भूल, या कुछ किया है जिसका आया है तो जमा कर दो, हम्म ये आ गया तो फिर कंप्लेंट नहीं। राइट। और उससे एक्चुअली ज्यादा एक मैक्स स्टेप आगे मैं तो कहूंगा कि अगर 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 ये रहा कि ये आया भोगवट तो अच्छा है, मेरा हिसाब चुकते हो गया, देवा डेथ, देवा चुकते हो गया, हम्म। तो फिर ये एक्सेप्टेंस लेवल राजी खुशी होगा, राजी खुशी, थैंक गॉड, उसको बोलेगा थैंक यू तूने मुझे दुख दिया, मेरा हिसाब चुकते कर दिया, थैंक हम्म। यू, सामने वाले को नहीं, प्रति। आपने जो स्टेप्स बताया, मतलब एक तो आपने को दिखता है तो वो तो तुरंत वो शिकर में आ जाता है जो हमारा गलती हुआ हुआ है,
उसके हिसाब से आया, तो उसी टाइम पे हम क्या बोलता है उसका, जब भी ऐसा दिखता है तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में वो दिखता नहीं है ना, मतलब वो पांचला वाला जो आता है ना वो दिखता नहीं है। उस टाइम पे आप जो अभी बोला है, ये मेरा ही किया हुआ मेरे को वापस आ रहा है, भोगवे तेनी भूल, उस चलिए एक सूत्र कर से सकते हैं। अपने को इसको जमा कर लेने का है, ऐसा। हाँ, दैट इज एट द ग्रॉस लेवल, दैट इज एट द ग्रॉस हम्म। लेवल। थोड़ा एक लेवल नीचे या थोड़ा फाइन जाना है, डीप में जाना है, तो एक कर सकते हैं कि जितना जैसा दुख मुझे आया है, हो सकता है इस प्रकार का दुख मैंने किसी को दिया है। वाणी से अगर किसी राइट। को पोषण किया है तो मेरे को वाणी से कोई दुख देगा। किसी को हम्म मैंने अलग प्रकार से दुख दिया है, हम्म उसे बात न करते या हम्म उसको अकेला छोड़ते या एक्स वाई जेड, तो उस प्रकार हम्म। से मुझे आएगा। तो बेस्ड ऑन द इफेक्ट्स आई कैन गेस व्हाट आर द कॉजेस, सिमिलर टाइप ऑफ कॉजेस आई वुड हैव डन। मैंने ऐसे राइट राइट। प्रकार से मीन्स दिस इज जस्ट वी कैन गेट एन इंडिकेशन। हाँ हाँ हाँ, यस यस। और वो इंट्रोस्पेक्टिव से शायद हमको इस जन्म के हो गए तो पता चलेंगे, या पता हाँ। चल सकता है कि शायद ऐसे प्रकार के दोष मैंने पिछले जन्म में किए होंगे। राइट। अभी देखो मैं स्थूल एग्जांपल दूं, कभी कभार कोई आदमी है ना, उसको नेचर बहुत प्रिय है। फॉर एग्जांपल एक रैंडम बोल रहा हूँ, नदी बहुत प्रिय है हम्म या दरिया किनारा बहुत प्रिय है, तो वहां पे हम्म वो जाएगा, मजा आएगा, अरे बीच में जाएंगे मजा आएगा, व्हेनेवर ही गोस टू अ बीच ही एंजॉय, और ही विल गेट हम्म सिचुएशंस वेयर ही कीप गोइंग टू द बीच, ऐसे संजोग मिल। हम्म। तो इसके ऊपर से, ये इफेक्ट के ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले भाव में मैंने ऐसे भाव किए होंगे कि आज मेरे को इफेक्ट में ये आ रहा है। मेरे को हम्म। बीच में मजा है, ऐसा सुख का आरोपण किया है, तो मुझे आज ये आ रहा है बार बार। हम्म। ये ये तो मैंने एक मोह का एग्जांपल दिया, डिस्चार्ज मोह का एग्जांपल दिया। हम्म। सिमिलरली डिस्चार्ज कषाय के भी एग्जांपल आ सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रकार के मेरे को विचार क्यों बार बार आ रहे हैं, ये चीज पसंद है या ये चीज पसंद नहीं है, तो इस प्रकार के मैंने कॉजेस या दोष किए होंगे, तो इस प्रकार की इफेक्ट आ रही। हम्म। तो अगर वो पता चला तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सिचुएशन, यानी रोबोटा का स्वीकृति इजीली हो जाएगी। हम्म। बट ये क्या है कि एवरीबॉडी कैन नॉट डू दिस मच ऑफ एनालिसिस, सो नहीं कर सकते तो वो कोई देने बोल करके छोड़ देने का, और जो कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और बस। इसीलिए हम्म। हाँ बस, हाँ तो ये एक है। नहीं, उसमें खाली दादा को उस समय में तो कोई मतलब स्पेसिफिक विधि तो बोल नहीं ना सकता है, लेकिन दादा को याद करके बोल सकता था कुछ ना कुछ ऐसा तो मेरे से गलती हुआ होगा, तो उसके लिए आज ये फल आया है, तो आप मेरे को माफ करना, दादा के पास ही माफी मांग सकता है ना। हाँ, अगर दुख है तो दादा के पास से मांग सकते हैं, या तो हमको समझ, सी एवरी टाइम प्रतिगमन इज नॉट द आंसर, समटाइम्स राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ उसका जवाब है। मेरे को ऐसे संजोगों में मैं क्यों आया हूँ, तो मेरे को एक कुछ किया है तो उसके लिए आया हूँ। व्यक्ति है, अतिक्रमण है, तो प्रतिक्रमण का कॉन्सेप्ट आवश्यक बन जाता है। वो चीज राइट सही राइट। समझ से भी नलीफाई हो जाती है, थोड़ी समझ के सामने सही समझ से प्लस माइनस हो जाती है, स्क्वायर ऑफ हो राइट। जाती और अभी आपने एक स्पेसिफिक जो के बारे में बोला ना, दादा के एक दाखला दिया था, जो कोई भी पर्सन से अपना अट्रैक्ट होता है तो वो पर्सन के मतलब शुद्धात्मा के हिसाब से आपने प्रतिक्रमण कर सकता है, विषय के लिए आपने बोला है। है। राइट, अभी एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसा इन जनरल अभी कोई पर्सन के नहीं, कोई आज की तारीख में इतना एक्सपोजर है, कोई भी टाइम पे आप टीवी बोलो, मोबाइल बोलो, कुछ ना कोई जगह के इस रिलेटेड कहानी आ जाता है, फिल्म आ जाता है, जो भी है, मतलब वो चित्र आ जाता है उस टाइम पे, मतलब थोड़ा बहुत वो क्या बोलता है, एक वो विषय का जो कि ग्रंथि ना वो फूटता है, तो वो उस उसके लिए क्या ऐसे प्रतिक्रमण करने का। नहीं, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हमने ऐसा ऐसा कुछ चार्ज किया है, ऐसी कोई भावना की होगी कि मुझे ऐसा ऐसा देखने मिले तो अच्छा है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज चार्जिंग ऑफ सच अ थिंग, और मुझे हम्म और अगर विषय का अगर थोड़ा एग्जांपल ले लूँ, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम सबका है
कि यू विल बी अट्रैक्टेड टू अ पर्सन, यू नो, पुरुष है तो स्त्री के ऊपर आकर्षित होगा, स्त्री है तो पुरुष पर आकर्षित होगी, ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन, उसका हाइट, बॉडी, रूप, हम्म रंग कुछ प्रकार का होगा तो वही ज्यादा आकर्षित करेगा, सब आकर्षित नहीं करेंगे। राइट तो दैट शोज वेरी क्लियरली कि पिछले अवतार में मैंने इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर नजर मेरी गई होगी और ये बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, ऐसे भाव थोड़े स्ट्रांग हो गए होंगे, इसलिए हम्म आज ऐसी व्यक्ति को देखे ऐसे विषय आकर्षण या विषय के विचार आते हैं। तो आज हम्म जिस डिजाइन के ऊपर, यानी शरीर के जिस रूप रंग आकार डिजाइन के ऊपर मुझे आकर्षित होता है, तो उसके ऊपर से मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि मैंने ऐसे कॉजेस डाले होंगे कि ये बहुत अच्छा है या हम्म बहुत अच्छी है, ऐसा प्रकार की शेप एंड साइज ऐसा। तो ये वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग द कॉज, और फिर हम उसी प्रकार के प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, हे विष्णुदाता भगवान, ऐसे ऐसे प्रकार के जिन जिन स्त्रियों या पुरुषों के ऊपर मैंने दृष्टि बिगाड़ी है या भाव बिगाड़े हैं, उन सभी के लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। सो इट गोज एट द ग्लोबल लेवल एंड हमारी जागृति बढ़ती है, जब भी आकर्षण होता है इमीडिएटली हम रिवर्ट हो जाते हैं, पीछे आ जाते हम्म। हैं। दैट इज द साइंस बिहाइंड। तो उसमें कॉज इफेक्ट मिल जाता है इजीली। हाँ दैट मीन्स वो इन जनरल बोल सकता है, जिधर जिधर हमारा ऐसा भाव द बिक डिजाइन रहा इज है। सेम, यू सी व्हाट विल हैपन इज डिजाइन इज सेम, फिर अलग अलग व्यक्ति वो डिजाइन के आगे तो हर एक व्यक्ति पे आकर्षण होगा। फॉर हाँ हाँ एग्जाम्पल, हाँ हाँ मैंने एक एक शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल एंड वट एवर आई हैव डिसाइडेड, और कोई लॉन्ग हम्म टॉल डार्क वट एवर, हम्म ऐसा व्यक्ति अच्छा है, पुरुष या स्त्री वट एवर। हम्म सो ऐसे डिजाइन वाली जो भी व्यक्ति मिलेगी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, तो सब में आकर्षण होगा, बिकॉज द डिजाइन इज हम्म कॉमन। सो वी हाँ हैव टू हाँ फोकस, हाँ हाँ, फोकस ऑन द डिजाइन एंड पता इमीडिएटली पता चलेगा, हाँ ये देखो ये मुझे आकर्षण हुआ बिकॉज ये मेरा ऐसे भाव बीच डाले हैं मैंने, सुख का आरोपण किया, इसलिए देन आई इरेज दैट। तो फिर धीमे धीमे सब इरेज हो जाए। मैं तो एक स्टेप आगे सोच रहा हूँ जी। ये हमारा भाव कोई ना कोई हिसाब से पहले जन्म में हो कि अर्ली स्टेज ऑफ दिस लाइफ हुआ होगा, उसके लिए ये सब चित्र जो भी है वो हमारा आज की तारीख में हमारा सामने आता है, संजोग आता है। राइट। मैं इस हिसाब से उसको लेता हूँ। तो ये हमारा ही बीज बोया हुआ है और वो आज की तारीख में हमारा सामने रूपक में आ रहा है। बराबर, तो परफेक्ट है। हाँ, वो डिजाइन के भी मैं पिछले एक अवतार स्टेप का आया आगे है जा रहा और हूँ। पिछले अवतार का आया है और इस अवतार में उसको हम्म। क्लियर नहीं किया है, तो अगेन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो जब वो तक वो क्लियर क्लियर करने नहीं के लिए होगा। प्रतिक्रमण हाँ, प्रतिक्रमण उसमें रास्ता है वो। प्रतिक्रमण, हाँ हाँ, इसमें प्रतिक्रमण इज अ मस्ट, इसलिए प्रतिक्रमण इज अ मस्ट, इज अ मस्ट। हम्म रिवर्सल ऑफ द ओपिनियन, रिपेंटेंस, उसका पछतावा और अभिप्राय बदलना, ना हो, मुक्त हो, ये सब वो तो शुद्धिकरण मांगता है। राइट। ये आप लास्ट वीक में आपने वो जो एक पुरुषार्थ और पराक्रम, वो दोनों का जो थोड़ा सा डिफरेंस, डिफरेंस तो काफी है मेरे ख्याल से। तो उसको और थोड़ा सा दो लाइन और आगे मैंने बात करी उसका, पुरुषार्थ और पराक्रम। हम आज की तारीख में पुरुषार्थ में ही थक जाते हैं। हाँ, हाँ। हमारे इस पुरुषार्थ की जो गलत हो रहा है ये ना हो, उसके पीछे में जो सामान्य हमारे जो प्रकृति के विरुद्ध जाने वाला जो भाग है वो पुरुषार्थ में जाता हम्म है। हम्म एंड पराक्रम यानी इंटेंस पुरुषार्थ के कम वॉट में इस ग्रंथि से मुझे मुक्त होना है या इस हम्म कमजोरी से मुझे मुक्त होना है। हम्म उसको, जिसको बोलते हैं ना, खाई खपूची ने इन्हीं पाछड़ पड़ी जाओ, हाथ धो के उसके हम्म पीछे पड़ जाना, हम्म पराक्रम कैटेगरी में जाता है। वेयर वी हम्म आर हैमर एंड टोंग्स अगेंस्ट द होल वीकनेस, राइट और उसके पीछे हेवी ड्यूटी पुरुषार्थ होता है और कंटिन्यूस होता है। हेवी ड्यूटी इन द सेंस इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इट इज क्लियर्ड। राइट वो पराक्रम कैटेगरी में जाता है कि कम वर्ड में इसमें से छूटना है या इसमें से मुक्त होना है। राइट वो कंटिन्यूअस एफर्ट। पराक्रम वाला बात अभी हम सबके लिए जरूरी है, बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम। सत्संग तो हम इतने वर्षों से सुनते हैं, इतने वर्षों से सही समझ मिली है, प्रकृति भी शुद्ध हो रही है टू एन एक्सटेंट,
जागृति भी बढ़ी है, बट हमारा जो सेपरेशन होना चाहिए, यानी कांस्टेंट सेपरेशन जो रहना चाहिए, सेपरेशन तो एक्सपीरियंस हम सबको है, बट इट इज इन पार्ट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े में जागृति और सेपरेशन वाला अनुभव रहता है। वो सेपरेशन वाला भाग कंटिन्यूस रहे, लंबे समय तक रहे, इसके लिए जो हमारे मेजर ब्लॉक से अटकन है जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर पराक्रम की बोल सकते राइट। तो वही एक जो लास्ट फ्राइडे मैंने बात की थी कि होली के निमित्त से जो बात हुई थी कि दादा भगवान ने बोला कि ये जो होली है उसके अंदर हमको हमारे कषाय को उसमें समर्पण करना है, तो हम कुछ ना कुछ हमारा एक लेते हैं। I don't know whether Mahatmas have done any push-out on that, whether someone wants to share any experience. किसी ने अभी तक बात नहीं बताई, but I think it can be taken up. और कोई भी एक विशेष पुरुषार्थ हम हमारे प्रकृति के विरुद्ध कॉन्स्टेंटली करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। वो कमजोरी हमको खींच नहीं पाएगा, उस समय में हम उसमें तन्मयाकार नहीं होगा। विषय है, कषाय है, खुराक है, आहार है, मूवीज है, पंचेंद्रिय के कोई भी सुख में, चक्षु के इंद्रिय में या स्वादेंद्रिय में, खाने में, अगर उसके पीछे हम स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ करते हैं, इसमें सुख नहीं है, ये ना हो, तो वो कमजोरी एकदम ढीली हो जाएगी और हमको फिर तन्मयाकार नहीं कर पाए। तो वो एक भाग निकल गया, ऐसे जो 4-5 मेजर निकल गई ना, तो हम प्रकृति से हमेशा के लिए सेपरेट रह पाए और तो में हम आत्मा का अनुभव आनंद ले पाएंगे। मेरे हिसाब से ये इसके ऊपर थोड़ा अगर फोकस करे एंड टेक इट अप एज अ प्रोजेक्ट, ये इस होली से नेक्स्ट होली तक मुझे ये करना है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन सेपरेशन। निरंतर का या मैं कहूँगा तो अखंड शुद्ध उपयोग में वन वचन का है कि अखंड ज्ञाता दृष्टा रहने में, उस लेवल की जागृति तक पहुंचने में ये आवश्यक भी है और हेल्प करेगा। बट इट इज नेसेसरी, देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन। या तो मैं धीमे धीमे EMI स्क्वायर अप करूँ या फटाक से देव करूँ, ऐसे वाली बात। पराक्रम इज ये जो कसाई जी कर रहे हैं होली में को ध्यान रखें, वो आप इसका की बात कर रहे हैं की तारीख में, हमारे लिए तो डिस्चार्ज कसाई है ना। हाँ डिस्चार्ज ही है ना, तो डिस्चार्ज कसाई को ही स्क्वायर अप करना है ना। हाँ हाँ हाँ। और ये जो होली का जो फायर की बात किया, तो मैं उसको मेरा समझन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेरा बुद्धि का भी हो सकता है उसमें जी, ये मैं इसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं ना, वो होली को ज्ञानाग्नि के हिसाब से ज्ञानाग्नि से उसका निवारण करना है। परफेक्ट। हाँ, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ज्ञानाग्नि में कषाय को जलाना है। हाँ बस मैं इसी हिसाब से ले रहा हूँ। तो इसका मैंने बराबर, मैं मेरे पर्सनल के हिसाब से कसाई तो सब मतलब वो डिस्चार्ज कसाई सब कुछ ही है, लेकिन उसमें से मैं टारगेट करता हूँ लक्ष्मी और विसाई, जो दोनों मेरे लिए लगता है सबसे ज्यादा मतलब मेरे लिए उपकारक है, ये दोनों को निकालने का है, लक्ष्मी और कसा। तो इसी टाइम पे पर्टिकुलरली विसाई के जब भी कुछ ऐसा विचार आ रहा है, क्या कोई भी ऐसा फूटा, तो इस टाइम पे आपका ये बात मैंने याद करके बोले मेरे को दादा ये ज्ञानाग्नि में इसको जला दो, तो ये मैं मतलब अंदर ही अंदर मैंने बात करता रहता हूँ। तो काफी हद तक 90% में वो विचार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है उसी टाइम पे, जो फूटता है ना उसी टाइम पे ये, हाँ उसी टाइम पे ये बात बोलते हैं ना अंदर, तो विचार उसी टाइम पे गायब हो जाता है। 10% में रहा, अभी ऐसा नहीं 100% मुक्त हुआ। तो ये मैं एक रिजल्ट मिला अभी एक वीक का जो नहीं, तो जरा आप थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे। ये सबके लिए बहुत यूजफुल बात बताई आपने कि पीछे के विचार फूटते हैं, तो आप जो आप बोले सेंटेंस ज्ञान अग्नि में डालता हूँ, वो एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं, डिटेल में थोड़ा बताइए। मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है कहीं भी आकर्षण हुआ, तो आप क्या विचार करते हैं? हाँ, तो तब मैं दादा को याद करके बोले दादा मेरे को ये विचार आ रहा है और इसको मेरे को ज्ञानाग्नि में जलाने का है, आप मेरे को मदद करो। ये बोलता है ना फटाक से उड़ जाता है, 90% केस में उड़ जाता है,
10% केस में रहा है, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं बोल 100% मुक्त हुआ, लेकिन वो तन्मयाकार जो भाग था ना, वो उसमें से 90% केस में विचरण में भी उड़ जाता वो। हाँ, सो बंद हो जाता इसको मैं, उससे। हाँ। हाँ, नहीं, वेरी गुड, नाइस, अच्छी बात है। तो इसको मैं थोड़ा अगर रिफ्रेश करूँ तो विषय का विचार आता है और इमीडिएटली हम्म। आप को बोलते हैं इसको ज्ञान अग्नि में जला दो। तो हम्म। इसेंशियली हम क्या करते हैं, विषय के विचार को देखते ही उससे सेपरेट हो जाते हैं और ये मुझे हम्म। नहीं चाहिए, मैं इसके पक्ष में हम्म। नहीं हूँ, ये हमारा हम्म। इंटेंशन होता है, हमारी एक भावना होती है। हम्म। भले शब्द का प्रयोग जो भी करो कि दादा इसको अग्नि में जला दो, यानी हम्म। बेसिकली मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अग्नि में जलाना राइट। यानी उसको विषय का विचार आता है और एग्जॉस्ट हो हम्म। जाता है, मैं उसमें तन्मयकार नहीं रहता। हम्म। और एक जला दो यानी इन द सेंस मैं आगे भी ऐसे विचार आए तो मैं उसके पक्ष में नहीं, और हाँ हाँ। मुझे संपूर्ण टोटली इस विचार विषय की गांठ से ग्रंथि से मुक्त होना है। राइट ये इसके पीछे का एक पूरा एक हमारा उद्देश्य है। राइट राइट राइट। हाँ, सो इट्स वेरी गुड। हर व्यक्ति अपने आप से थोड़ा शब्द प्रयोग कर सकता है, उसमें नथिंग रॉन्ग, बट उसका मेन मर्म मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ और संपूर्णपणे 100% मेरी ये हम्म। ग्रंथि समाप्त हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज यू सी व्हाट रियली मैटर्स, इसमें जो मर्म क्या है, कि विषय का विचार आते ही आप इंस्टेंट जागृत हो जाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। और हम्म। इंस्टेंट जागृत होने के बाद आप दादा को बोलते हैं दादा ये ग्रंथि में आपको सौंपता हूँ या जला दो। हम्म। की इज, इसमें महत्व की बात यह है कि उस समय आप इंस्टेंट जागृत रहते हो या हो जाते हो। होता क्या है, कभी कभी विषय है या कोई भी कमजोरी है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, हम उसमें तन्मयाकार हो जाते हो, थोड़ी देर के बाद फिर याद आता है ये गलत हो गया। या तो थोड़ी देर के बाद, कुड बी 1 मिनट, इट कुड बी हाफ एन आवर, इट कुड बी 1 आवर, इट कुड बी 1 डे, डिपेंड्स ऑन दी इंटेंसिटी। हाँ हाँ। तो महत्व इस बात का है, पराक्रम का जो हम लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, कि ग्रंथि फूटते ही या उसके विचार आते ही हम इंस्टेंटली जागृत हो जाते हैं और उससे उसमें तन्मयकार नहीं होते। इंस्टेंट जागृत हो गए, उसमें तन्मयकार न हो क्या, उसको छोड़ देते हैं उस विचार को। फिर छोड़ने की प्रक्रिया में अलग अलग शब्द प्रयोग हो सकते हैं कि मुझे क्षमा करो, नो ही मारो, या दादा मैं आपको सौंपता हूँ, या उसको जला दो, है, या उसके शुद्धात्मा को देखो, वट एवर, या कोई बोलेगा मुझे निर्विकार रहने की शक्ति आपको। काउंटर मेजर्स कुछ भी हो सकता है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्व वाली बात क्या है, हमारी जागृति ऑन द मोमेंट आ जाती है और हम उसके पक्ष में बैठते नहीं है या हम उसमें तन्मयाकार होते नहीं है। दैट इज द की, एंड वी वांट टू कम टू दैट लेवल, वी वांट टू कम टू लेवल की इंस्टेंटेनियसली उड़ जाए। फिर तो क्या हो गया, बोले हेल्प है ना, फिर तो भले जितनी भी गांठें फट 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 आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, वी आर सेपरेट। एंड फिर तो उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, वो ग्रंथि भी ऐसे पिघलती जाएगी, तो विचार की तीव्रता भी, फोर्स एंड ड्यूरेशन, कितने समय तक रहता है विचार, वो भी कम होते जाएगा। बट टू कम टू दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस, उस जागृति तक पहुंचने के लिए जहाँ हम इंस्टेंटली उसको बोलते दादा ये विचार आपको सौंपता हूँ, या दादा ये इसके पक्ष में नहीं हो, उसके लिए पहले वो गांठ तो थोड़ी ढीली होवे या मेरी जागृति तो थोड़ी बढ़े, ताकि मैं थोड़ा जो खींचा जाता हूँ उसमें थोड़ा तन्मय का हो जाए, तो वो भागना हो। उसके लिए वन ऑफ द सजेशन, देयर आर मेनी, वन ऑफ देम इज, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ ऑफ पीरियड में, जब विचार नहीं आते ये गलत है, ये सुख का साधन नहीं है, या निर्विकार रहने शक्ति आपको इन दिस पर्टिकुलर केस, तो ये मैं अगर ऊंधे आंटे लगाता हूँ तो मेरी आज की जागृति ग्रंथि के विरुद्ध के पक्ष वाली जागृति, ग्रंथि के विरुद्ध की मेरा जो अभिप्राय या निश्चय है, उसको मैं सज्जड़ स्ट्रॉन्ग करता हूँ, दृढ़ करता हूँ। दैट इज द की, दैट इज द पराक्रम, कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दैट इज द होमवर्क बेसिक। फिर रिजल्ट क्या आएगा
कि जब वो ग्रंथि फूटेगी संजोग के आदि, किसी स्त्री को देखो और विचार आया और या कोई अच्छी पकवान देख के खाने का विचार आया, वॉट एवर इट में बी, वो विचार आते ही दैट इज अज्ञान वाला भरा हुआ माल निकल रहा है, अज्ञानता से माल निकलता है, जो निकलेगा ही, देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन, और निकलना भी चाहे तो एग्जॉस्ट होगा। तो जब वो निकलेगा तब ये आज का जो मैंने ऊंधे आटे लगाए हैं, आज की जो निश्चय को मैंने सज्जड़ या सदृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया है, राइट। वो यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। And वो हाजिर होने से फिर इंस्टेंटेनियसली हम उसको फेंक देंगे, उसमें तन्मयकार। राइट। So, जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है पराक्रम वाला, कि हम ऐसे ऐसे चीज में जहाँ पे हम स्लिप हो जाते हैं या तन्मयकार हो जाते हैं, इट कुड बी डिस्चार्ज मोर, इट कुड बी डिस्चार्ज का आइदर ऑफ द, वहां पे हम ऐसा कुछ करें जिससे इंस्टेंटेनियसली हमारी जागृति वहां पे हाजिर हो जाए और हमको परेशान ना, या हमको तन्मय ना। दैट इज दिस थिंग, एंड एवरीवन हैज अ फ्यू ऑफ देम। हर एक के पास दो चार ऐसे रहती है जिसमें हम अटक जाते हैं, जिसको अटकन भी कहते हैं। आपने लक्ष्मी Right. बोला, मान है, दीज आर टिपिकली 3 or 4 थिंग्स, मान, लक्ष्मी, विषय, આહાર, ખુદ का मनमानी करवाना, જેને ધાર્યું કરવાની શું કહેવાય, મમતા, मेरा मेरा मेरा, these are 4-5 major blocks, और भी है, but Right. these are typically, अगर सर्वे करे तो टिपिकली ये रहेंगे। हर एक की अलग अलग रहेगी। सो हर एक को खुद का ढूंढ के इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑन दिस फोरम टुडे, आज मैं दोबारा सबको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ आप जरूर से अपनी प्रकृति में खोजें, और इसके ऊपर एक वीक के लिए पुरुषार्थ करके नेक्स्ट वीक जरूर आपका एक्सपीरियंस बताएं। दुबे जी ने आपने अच्छा बताया कि मैं ये ज्ञान अग्नि में सौंप दूं, ऐसा बोलता हूँ, दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अगर लास्ट वीक में किसी ने किया है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, तो दूसरों को हेल्प होगा। और नहीं है तो आई रिक्वेस्ट कि जरूर से कुछ करें, और नेक्स्ट वीक आप लोग उसके ऊपर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताएं, तो देयर इज लॉट ऑफ क्रॉस लर्निंग, एक दूसरे के अनुभव से सीखने को मिलेगा। तो प्लीज डू द पुरुषार्थ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, जरूर से आप पुरुषार्थ करके आपका अनुभव शेयर, ऐसे में महात्मा को निवेदन। जय सचिन। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मुझे जो है एक एक्सपीरियंस बताना है। ये विषय विषय के जो बात हो रही थी, इस पे मेरा वो मैं ये जो है फॉलो करता हूँ। जो एक तो मैंने समझा जो है कि आप पुत्र ने क्या कहा, वो जो है वो फॉलो करने की कोशिश किया। तो लेकिन उसमें मेरे को पहले पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि मैं फॉलो नहीं होता था, जो है वो प्रतिक्रमण भी नहीं होता था। तो उसके बाद फिर जो है उसमें मैंने ये देखा कि उसमें मेरा जो है वो रिलैक्स नहीं होता है, जो है एक तो फिर बाय चांस जो है मेरे को ये ऐसा मिला कि जो जो दादाजी का वाणी है वो सुनने को मिला जो है। तो फिर उसके बाद मैं जो है मतलब पिछले कई सालों से रोज जो है दादाजी का वाणी का सुनता हूँ, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है। उसके बाद फिर मैं जो है जो आप पुत्र बताते हैं वो फॉलो कर पाता हूँ। तो उससे क्या है, जो आपने बताया ना गांड ढीली होती है, तो वो सब जो है मैं विचार जो है नेगेटिव विचार आना, वो विषय के विचार आना, वो पहले थोड़ा कम हो जाता है, उसका फोर्स कम हो जाता है। फिर उसको जो है मैं जो आप पुत्र बताते हैं वो मैं जो है उसको प्रतिक्रमण करना और उसका जो एनालिसिस करना जो है कि इसमें सुख नहीं है, ये सब जो है मैं करके फिर उसको ऐसे हैंडल करता हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको ज्ञानी पुरुष की वाणी से एक बल मिला, एक आवरण टूटे और समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, एंड हूँ। हाँ ये पुरुषार्थ आपका शुरू हो गया, ऐसा आप कहना चाहते हाँ, वो मैंने सुना भी था, वो दादाजी का ने बताया कि जो है कि उसमें उन्होंने इसके बाद इसके कैसा काम करता है वो पहले मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन वो उन्होंने बताया कि जब हमारे पास जो है हमारी वाणी सुनते हैं लोग जो है, तो उसमें उनको थोड़ा सा
रिलैक्स हो जाता है वो, और फिर वो जो है जो सामने के संजोग है वो ज्यादा अच्छे से वो फेस कर पाते हैं, और वो पुरुषार्थ अच्छे से वो कर पाते हैं, ऐसा वो उन्होंने बताया। तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि ऐसा मैं जो है जब उनकी वाणी सुनता हूँ उसके बाद फिर जो पुरुषार्थ में अच्छे से उसमें थोड़ी मुझे शक्ति आ जाती है, और उसके बाद मैं फिर पुरुषार्थ अच्छे से कर पाता हूँ। नहीं, अच्छी बात, सही बात है। अगर उसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करूँ आपके अनुभव को, हाँ। वो क्या है कि बेसिकली हमारे इतने आवरण है कि हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ज्ञानी के वचन बल वाली जो वाणी हम सुनते हैं तो हमारे आवरण हटते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद फिर बाकी सब वाणी फट 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 समझ में आते हैं, और समझने के बाद फिर पुरुषार्थ ऑटोमेटिक आता हाँ है। हाँ, दैट इज द समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस। शक्ति मिलती है मुझे, शक्ति मिलती है उससे हाँ, कुछ। सकती हूँ, क्योंकि वचन बल वाली वाणी है ना, तो वचन हाँ, बल वाली वाणी ज्ञानी पुरुष की आवरण तोड़ देती है, तो बात समझ में आती है और पावर भी आता है। हाँ हाँ, ये करने जैसा। और मैंने एक और चीज नोट किया है, फिजिकली भी जो है उसमें मैंने पल्स जो है अपना देखा, ठीक है, तो पल्स भी जो है वो स्लो होता है, उसका उसका जो है वो चेंज होता है, मतलब उसमें उसमें जो है क्योंकि माइंड और वो सब अंतस्करण और बॉडी कनेक्टेड होता है ना, तो उसमें वो सब चेंजेस भी आने लगता है, तो फिर वो सब चेंजेस आता है जो है, मतलब नॉर्मेलिटी की तरफ जाता है जो चीजें जो हाँ, जाता है अंतर बाह्यकरण अंतस्करण सब में फर्क पड़ना। राइट, वेरी गुड, ट्रू। है सच्ची। हाँ, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચાઈ પુલિનાજી. હા, હેમાબેન આગળ નો હતો પ્રશ્ન પણ નથી આજે તો તો જતા રહ્યા, લેટ થઈ ગયો છે. હા, વાંધો નહીં. સારું કઈ તમે સારું. પુરુષાર્થનું આગળ તમે આગળ પ્રશ્ન નથી કોઈ મહાત્માને, એટલે તમે આગળ પેલું પુરુષાર્થની જે દર વીકનું તમે વાત હા, કરો છો. બસ એટલે હું તો હજી આ વીક ઓપન જ રાખું છું. એક એક્સપિરિયન્સ આપણી પાસે આવ્યો, હા, એક અનુભવ આપણી પાસે આમનો સુધીરજીનો આવ્યો કે હું આ રીતે જ્ઞાન અગ્નિમાં વિશેનો વિચાર આવે છે તો હું આવી રીતે સોંપી દઉં છું. ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને આપણે બધાએ પણ આવી રીતે જ એક પોતાનું શોધવાનું છે, જે મોટી એક અટકણ હોય કે નબળાઈ હોય, અને એના પર કાં તો ઊંધા આંટા મારીએ છીએ કે કંઈક જાગૃતિ વધારવા માટે કંઈક સમજણ મૂકીએ છીએ કે શક્તિ માંગીએ છીએ. તો એવું કંઈક અત્યારે ફ્રી રાખું છું, કોઈ પર્ટિક્યુલર આપતું નથી આજે હું આ વખતે. પોતપોતાની રીતે અંદર થોડી શોધખોળ ઓકે. કરીને જરૂરથી કંઈક હોય તો કહેજો, અને મે બી નેક્સ્ટ વીક આઈ વુડ ટ્રાય ટુ ગીવ સમ. હમ. અત્યારે આપણે એટલું રાખીએ. હા, ઓકે, કઈ નહીં, તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો, હું ફોલો કરીશ. હા, આગળ પ્રશ્ન નથી પુલિનાજી, અને સમય પણ થયો છે આપણો. હા, હા, સારું. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌવ સાહુણમ. નમો લોયે સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપનાસણો, સૌવ પાવપણાસણો, મંગળાણં ચ સુદેશિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિયાનંદજી. જય હા, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ. હા, દીપકભાઈ, અરુણાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ પુલિયાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.